Good morning, student. Am I audible? Yes, Good ma'am. morning, ma'am. Yes, ma'am. Okay, student. Yes, ma'am. Here we have already started with the chapter number 3, demand function. And in the demand function, what are all points we have seen? We have seen the meaning of demand, then we have seen the law of demand, determinants of demand is over, demand function is over, and yesterday we have seen about the price, income, and the substitution effects also. Now today we have to see nature of demand cover the different markets. See, student, this question will going to come for 7 or 8 marks. It may going to ask you like explain any two types nature of demand curve under two types of a market, or else like any specific market they will going to ask you कि चलो ये market में कैसे nature of demand curve है करके that we have to explain. Okay, but this is very important from the examination point of view, that the nature of demand curve in the different market, even from if we will take it from the MCQ point of view also, so still it is very important. Okay, तो आप लोगों को ये पॉइंट स्किप नहीं करना है, आप लोगों को ये अच्छे से समझ के लेना है, बाहर नहीं करना है, समझ के लेना है कि कैसे नेचर ऑफ डिमांड का रहता है अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ मार्केट. See, now we'll start here. See, different types of market we are saying. You people have already studied what are all types of a market are there in the economy. Okay. So types of market जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि तुम लोगों ने 12th में पढ़ा था, परफेक्ट कंपटीशन था, उसके बाद में मोनोपोली था, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन था, देन ओलिगोपोली था. ये सारे टाइप ऑफ मार्केट यू पीपल हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर 12th स्टैंडर्ड. अगर हम लोग ये सभी मार्केट्स के बारे में बात करेंगे, then each and every market are having some different characteristic. हर एक का अपना अपना एक स्पेशलिटी था. ओके, तो जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन है, so there will be large number of buyers and seller. If it is monopoly, so there will be single seller. If it is monopolistic competition, so there will be many buyers and the many seller. If it is oligopoly, so there will be few seller. तो कोई एक टाइप ऑफ मार्केट में सेलर प्राइस चेकर रहेगा, किसी और में वो प्राइस मेकर रहेगा. कोई एक मार्केट रहेगा कि जिसमें कमोडिटी होमोजेनियस रहेगा, किसी में कमोडिटी डिफरेंशिएटेड रहेगा, किसी में एकदम यूनिक कमोडिटी रहेगा. Isn't it? So on that basis of the characteristic, we are classifying the what type of a market it is. Is this clear to you, student? ऐसे ही था ना, याद आ रहा है 12th स्टैंडर्ड का आप लोगों को? Yes. Yes, ma'am. हाँ, तो ये ऑलमोस्ट सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है. बस आप लोगों का भी यही समझना है कि जो नेचर ऑफ डिमांड का है वो कैसे चेंज होता है, उसके पीछे क्या रीजन रहता है. ओके, सी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ मार्केट टू विच type of market belongs depend upon the number of factors such as number of sellers and the buyers, and the nature and the characteristic of a product, the control exercised by the sellers or the buyers, and many other factors. As I already told you कि जो भी टाइप का मार्केट रहता है उसके अंदर बायर्स एंड सेलर कितने हैं, कितना कैसे कमोडिटी वहां पे सेल किया जाता है, कैसे प्राइस वहां पे डिटरमाइन होता है. ऑन दैट बेसिस वी आर डिसाइडिंग which type of a market it is actually belonging. Okay, accordingly the nature of demand curve is a different in a different market also. Okay, so now first we will start with demand curve in perfect competition. चलो अभी तुम लोग मुझे आंसर देते जाओगे जो तुम लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. Let me see whether you all are remember or not. When I am saying about the perfect competition, तो यहाँ पे buyers and seller कैसे रहते हैं स्टूडेंट, क्या नंबर में रहेंगे, बहुत ज्यादा रहते हैं या कम रहते हैं? What we say for the buyers and seller when we are talking about the perfect competition? Yes, बोलो क्या कैसे रहता है? There are large number of, याद आ रहा है? Yes, large number of buyers and sellers. नहीं याद आ रहा है तुम लोगों को ये सब पॉइंट? पढ़ा था या नहीं पढ़ा था कुछ 12th स्टैंडर्ड में? Yes, पढ़े थे मैं. हाँ तो बोलो. There are large number of buyers and large number of seller. देखिए अभी आप लोग मुझे ये बताओ कि वहां पे नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स तो बहुत ज्यादा है. जो कमोडिटी सेल की जाती है स्टूडेंट परफेक्ट कंपटीशन में, वो कैसी रहती है? वो सबके पास सेम रहती है, होमोजेनियस रहती है, या फिर डिफरेंशिएटेड रहती है? Differentiated. ओके, मुस्कान इज सेइंग कि डिफरेंशिएटेड.
बाकी लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? यस, परफेक्ट कंपटीशन में जो कमोडिटी सेल की जाती है, इज इट होमोजीनियस और द डिफरेंशिएटेड? Homogeneous, ma'am. Homogeneous, ma'am, I think. Homogeneous. Yes, Shubham is correct. It Homogeneous, is ma'am. actually homogeneous. ठीक है, कमोडिटी कैसी रहती है? होमोजीनियस रहती है, डिफरेंशिएटेड नहीं रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जिस टाइप का कमोडिटी सेल होता है ना, उसके अकॉर्डिंग पूरा चेंजेस वहां पे होता रहता है। कमोडिटी का अवेलेबिलिटी जैसा है, किन किन लोगों के पास वो अवेलेबल है, कितने ज्यादा लोगों के पास वो अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग वहां पे डिसाइड किया जाता है कि मार्केट का Large सिचुएशन क्या रहेगा, कितना प्रॉफिट रहेगा और कितना प्राइस लगाना चाहिए। ओके, तो सी यहाँ पे व्हेन वी से कि परफेक्ट कंपटीशन में होमोजेनियस कमोडिटी को सेल किया जाता है। होमोजेनियस का मीनिंग ये होता है कि दे आर सेम, दे आर आइडेंटिकल, दे आर सेम इन शेप, दे आर सेम इन साइज, दे आर सेम इन टेस्ट, इजंट इट? याद आ रहा है ना आप लोगों को? Yes, ma'am. हाँ, याद करो, थोड़ा सा फिर से Yes, रिकॉल ma'am. करो। जो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था वो रिकॉल करते जाओ, तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा। सेकेंड टाइम यू आर लर्निंग दिस टॉपिक, ओके? सो परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, दैट द सेलर इज सेलिंग द होमोजेनियस कमोडिटी विच इज आइडेंटिकल, मतलब जो कमोडिटी मेरे पास है वही कमोडिटी साहिल के पास रहेगा, वही कमोडिटी अश्विनी के पास रहेगा, वही कमोडिटी मुस्कान के पास रहेगा। सो वी ऑल विल गोइंग टू हैव द सेम कमोडिटी। अभी मार्केट में हम सब लोग हैं ना, हाउ मेनी पार्टिसिपेंट आर देयर? We are 22 people are selling the same commodity in the one market. एक ही मार्केट में हम लोग 22 लोग क्या कर रहे हैं, वही कमोडिटी को, सेम कमोडिटी जो एकदम आइडेंटिकल है, उसको हम लोग अभी सेल कर रहे हैं। अभी आप लोग मुझे बताओ, अगर मैं अकेली वहां पे प्राइस कम करना चाहूंगी, प्राइस अगर मैं अकेली कम करती हूँ, तो आप लोग मुझे अलाउ करोगे वो प्राइस कम करने के लिए? यस, आप लोग मुझे अलाउ करोगे प्राइस कम करने के लिए? नहीं, मैम, नहीं। नो मैम, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने प्राइस कम कर दिया तो लोग मेरे पास ही आने वाले खरीदने के लिए, इजंट इट? और अगर मैं अकेली प्राइस बढ़ाती हूँ, तो आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन रहेगा? यस? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. अगर मैं कमोडिटी का प्राइस बढ़ाती हूँ तो आप लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? बिकॉज आपको पता है, अगर ये अकेले कमोडिटी का प्राइस बढ़ा के रखेंगे तो कोई भी सेलर इसके पास जाने नहीं वाला है। सारे सेलर जो रहेंगे वो हमारे पास ही आने वाले, बिकॉज सेलर्स को भी पता है, सॉरी आई शुड से बायर्स, कोई भी बायर जिसके पास नहीं आने वाला है, बिकॉज बायर जहाँ पे कम प्राइस रहेगा वहां पे आएगा, और जहाँ पे एक ही मार्केट में सेम, जैसे कि हम लोग टमाटोस की बात करेंगे, चलो वेजिटेबल्स के बारे में, ठीक है? मार्केट में एक दिन में हर एक के पास टमाटो ही सेल करने के लिए आ गया है, और वो भी सेम क्वालिटी का ही टमाटो है ना, छोटा बड़ा एकदम बराबर साइज, देन अगेन सेम कलर, सेम पका हुआ, ऐसा वाला टमाटो सबके पास आ चुका है। अगर वहां पे इतने 22 सेलर अवेलेबल है, उसमें से अगर कोई एक सेलर वहां पे बहुत ज्यादा प्राइस लगाएगा, देन ऑब्वियसली आई विल नॉट गोइंग टू गो विथ हिम। एज अ बायर मैं उससे नहीं खरीदने वाली हूँ, एज अ बायर मैं जहाँ पे सस्ते में अवेलेबल है उससे ही खरीदने वाली हूँ, इजंट इट? सो यहाँ पे क्या होता है, जब प्राइस बढ़ जाता है तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं रहता है, ठीक है, एक को प्राइस बढ़ाने दो, उससे कोई खरीदने नहीं वाला है। लेकिन अगर कोई प्राइस कम करेगा तो फिर वहां पे ऑब्जेक्शन आ जाता है। ओके, सो व्हाट इज दैट बेसिकली हैपनिंग? यहाँ पे जो प्राइस डिसाइड किया जाता है, कोई इंडिविजुअल फर्म प्राइस के बारे में डिसीजन नहीं ले सकता है। इंडिविजुअल फर्म को द डिसीजन फॉर द प्राइस ही हैज टू टेक एज पर द मार्केट फोर्सेस, मतलब मार्केट में जितना डिमांड है, जितना सप्लाई है, उसके अकॉर्डिंग उनको वहां पे प्राइजेस लगाने पड़ते हैं। तो अभी आप लोग मुझे बताओ कि इंडिविजुअल फर्म प्राइस डिसाइड नहीं करता है, उसको प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ता है, जो बाकी लोग वहां पे प्राइस चार्ज करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो आप लोग इसको क्या कहोगे स्टूडेंट? ही इज द प्राइस टेकर और द प्राइस मेकर? क्या कहोगे आप? Price taker. यस, Taker. वेरी गुड इमरान, ठीक है? Price taker. यस, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, उसको प्राइस टेकर करके कहेंगे, ओके, बिकॉज ही हैज टू एक्सेप्ट द प्राइस। चलो अभी हम लोग है ना वन बाय वन देखते हैं कि अगर कोई
परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में इंडिविजुअल फर्म का डिमांड को कैसे रहता है और मार्केट का डिमांड को रहता है. See, firms demand curve. In a perfectly competitive market, individual firms are the price taker. Okay, the price is determined by the intersection. The price is determined by the intersection of the market supply and the demand curve. Here you can see in the diagram 3.2, the firm's demand curve is the horizontal line. This is shown in the figure 3.2. It indicates the price elasticity of demand is perfectly elastic. Thus, at the given price, that is P1 in figure 3.2, the demand for a product is infinite. It describes a situation where any increase in the price, no matter how small, will cause the demand for a good to fall to a zero. In a perfectly competitive market, the firms cannot reduce the price because if they lower the price, they will make the negative profit. Okay, see what you can see in the diagram. आप लोग ये देख रहे हो, ये इंडिविजुअल फर्म का डायग्राम है. जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल फर्म जो रहते हैं ना परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, वो प्राइस खुद से नहीं डिसाइड कर सकता है. उसको प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ता है कि जो मार्केट का सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग. लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर वो प्राइस कम करेगा, उसको लगेगा कि नहीं चलो मैं प्राइस कम करके रखता हूँ तो मुझे मेरे कमोडिटी के ज्यादा डिमांड रहेगा, मुझे ज्यादा बायर्स मिलेंगे. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होता है, सपोज इफ ही विल डिसाइड टू रिड्यूस द प्राइस फ्रॉम OP1. OP1 ये क्या है, मार्केट का प्राइस है. अगर वो उससे भी कम प्राइस करेगा ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको लॉस फेस होगा. क्यों लॉस फेस होगा? बिकॉज जो OP1 प्राइस है ना, on that price on the perfectly competitive market, the firm will going to earn only the normal profit. परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में कोई भी फर्म नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा पाता है, वो कोई भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा. क्यों नहीं कमा पाता है? बिकॉज उनके लिए बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल रहते हैं. इसके लिए वो लोग पहले से ही थोड़ा मिनिमम प्राइस चार्ज करते हैं. ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी उनका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाने का जो सपना है वो तो रह ही जाता है. सो एटलीस्ट दे आर अर्निंग द नॉर्मल प्रॉफिट. लेकिन अगर कोई भी फर्म वो OP1 प्राइस जहाँ पे उनको नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है उससे कम प्राइस चार्ज करेगा, देन दे विल गोइंग टू फेस द लॉसेस. तो nobody will like to reduce their profit level. मतलब जस्ट उनको अपना कॉस्ट ही रिकवर होने वाला है तो कोई मीनिंग ही नहीं ना बिजनेस करने का. बिजनेस क्यों करते हैं हम लोग, कोई भी कमोडिटी को क्यों सेल करते हैं? बिकॉज वी नीड टू अर्न अ लिटिल बिट प्रॉफिट. एंड इफ यू आर रिड्यूसिंग द प्राइस फ्रॉम द दैट OP1, तो उनको वो लिटिल बिट प्रॉफिट भी नहीं मिलने वाला है. So, इसके लिए इंडिविजुअल फर्म will not try to reduce the price which is decided by the market forces. अगर वो डिसाइड करेगा कि जब मार्केट फोर्सेस में प्राइस OP1 है, चलो मुझे तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, तो मैं प्राइस को थोड़ा और बढ़ा के रखता हूँ, मैं OP1 से उसको इंक्रीज करूंगा. अभी आप लोग मुझे बताओ, अगर वो प्राइस OP1 से बढ़ा के रखेगा तो उसका सेल तो होगा क्या? वहां पे कमोडिटी सेल होगा या नहीं होगा? क्या लगता है आप लोगों को? नहीं होगा. नहीं होगा. ठीक है, वो सेल ही नहीं होगा. तो वो सेल ही नहीं होगा तो वहां पे उसको वो कुछ पैसा ही नहीं आने वाला है. तो उसके लिए अल्टीमेटली he need to stick on the price level which is OP1. ये इंडिविजुअल फर्म का सिचुएशन है. इसके लिए वहां पे वो हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व दिख रहा है. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द मार्केट डिमांड कर्व. देखो मार्केट डिमांड कर्व में क्या होता है कि देयर आर मेनी sellers are available and these all sellers are selling the homogeneous commodity only. Okay, and homogeneous commodity भी कौन सा वाला है? They are all selling the normal commodity. नॉर्मल कमोडिटी किसको कहा जाता है कि अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस अगर कम होता है और उसका डिमांड बढ़ता है, ओके, तो उसको नॉर्मल कमोडिटी कहा जाता है. मतलब लॉ ऑफ डिमांड जिस भी कमोडिटी के लिए एप्लीकेबल होता है कि if the price increases demand fall, if the price decreases the demand rises. If this law is applicable to any of the commodity, so that commodity is coming into your ordinary commodity or we can say the normal commodity. Okay, normal goods में वो आता है. तो perfectly competitive market में already these sellers are selling the normal commodity. तो वहां पे प्राइस का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे will going to have the changes in their demand. और जब भी ऐसा किसी भी कमोडिटी के लिए होता है, so obviously as per the law of demand
their demand curve will be downward sloping, as you can see in the diagram 3.3 also, कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी सारे सेलर नॉर्मल कमोडिटी सेल कर रहे हैं, और वो भी अगर प्राइस कम ज्यादा करते तो उनके अकॉर्डिंग डिमांड भी कम ज्यादा होता है. So this is what the perfect competition में मार्केट लेवल का, मार्केट का डिमांड कर्व कैसे रहता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन हियर, कैसे डिटरमाइन होता है. देखो परफेक्ट कंपटीशन में व्हेन वी से, यहाँ पे जो डायग्राम है 3.4, उन्होंने यहाँ पे they have shown the market demand curve also and they have shown the individual demand curve also. Okay, so market demand curve में उन्होंने क्या दिखाया है, they have shown the demand curve as well as the supply curve. तो जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि whenever the demand curve and supply curve are intersecting at a particular point, तो वो पॉइंट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट. और इक्विलिब्रियम पॉइंट ऐसा है कि जहां पे कोई भी फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकता है. ओके, सो इसके लिए एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट वी आर गेटिंग द प्राइस लेवल दैट इज OP0. ठीक है, हम लोगों को क्या प्राइस मिल रहा है, OP0 इज वी आर गेटिंग द प्राइस, एंड एट दिस OP0 पॉइंट द फर्म विल बी अर्निंग द नॉर्मल प्रॉफिट. तो यही पॉइंट जब मैं फर्म के पास, इंडिविजुअल फर्म उसको चार्ज करता है, तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे ही नॉर्मल प्रॉफिट है. अगर कोई इंडिविजुअल फर्म प्राइस बढ़ा देगा तो कोई उससे खरीदेगा नहीं, अगर वो इससे भी ज्यादा प्राइस कम करेगा डिमांड को बढ़ाने के लिए, तो ना उससे उसको टोटली लॉस होने वाला है करके, तो ही विल स्टिक एट द P0 पर. अभी आप लोग मुझे बताओ चलो फटाफट कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में इंडिविजुअल फर्म का डिमांड कर्व कैसे रहता है, हॉरिजॉन्टल रहता है या डाउनवर्ड रहता है, हाउ इज इट एक्चुअली, शुभम बोलो. हॉरिजॉन्टल. यस, और अगर वही मार्केट डिमांड कर्व रहेगा तो वो कैसे रहेगा बेटा, डाउनवर्ड. यस, वेरी गुड मुस्कान. ठीक है, तो वो डाउनवर्ड रहेगा. आपको ये डायग्राम समझ में आ गया. देखो एक ही पॉइंट पे, यही एक पॉइंट है ना कि जहाँ पे 3 डायग्राम आ रहे हैं, एक इंडिविजुअल फर्म के बारे में, एक मार्केट डिमांड को के बारे में, और तीसरा जो डायग्राम रहेगा वहां पे कैसे मार्केट डिमांड को इंडिविजुअल डिमांड को बनाता है, हाउ इट इज डिटरमाइंड. तो वो हम लोगों ने देखा है. तो आप लोगों को क्या करना है, एक सिंपल एक्सप्लेनेशन देना है कि व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, देन डायरेक्टली डायग्राम निकालना है इंडिविजुअल का, उसका डायग्राम का एक्सप्लेनेशन दे दो. सेकंड मार्केट डिमांड, उसका एक्सप्लेनेशन दे दो. थर्ड मार्केट डिमांड को एंड इंडिविजुअल डिमांड को, दोनों को एक साथ आपको दिखाना है. विल यू एबल टू डू दैट इन द एग्जाम? यस. और इसी पॉइंट के लिए ओनली फॉर द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का अगर आप लोग नेचर ऑफ डिमांड को निकालोगे तो यही एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए भी आ सकता है. लेकिन आप लोगों को 4 ऐसा नहीं रहता है. सो अगर मैंने आपको कोई 2 क्वेश्चन दिए, आई मीन कोई 2 टाइप ऑफ मार्केट बताए कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ डिमांड का अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड द मोनोपोली मार्केट, तो ये क्वेश्चन अगर 8 मार्क के लिए आ जाता है, 8 मार्क के लिए, तो वहां पे 1 मार्क तो ऑब्वियसली आपको इंट्रोडक्शन के लिए रहता है, मीनिंग लिखने के लिए रहता है. लेकिन एक यही है परफेक्ट कंपटीशन का जो पॉइंट रहेगा, उसके लिए आपको टोटली 4 मार्क्स दिए जाएंगे, बिकॉज इसमें डायग्राम ज्यादा है. सो 4 + 1 5 वहां पे हो जाएंगे. 6 7 8 जो 3 मार्क्स रहेंगे वो नेक्स्ट टाइप ऑफ मार्केट के लिए रहेंगे. आर यू गेटिंग मी स्टूडेंट? समझ में आ रहा है आप लोगों को कि क्यों इम्पोर्टेंट है करके? यस, यस मैम. ओके. अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली मार्केट. अच्छा, यहाँ पे हम लोग मोनोपोली की बात कर रहे हैं, तो अभी आप लोग मुझे बताओ यहाँ पे सेलर बहुत सारे हैं या एक ही सेलर अवेलेबल है? बोलो स्टूडेंट. सिंगल सेलर है मैम. सिंगल सेलर. हाँ, सिंगल Single सेलर seller. अवेलेबल है. ठीक है, सो व्हेन वी से अबाउट द मोनोपोली मार्केट, तो वहां पे सेलर एक ही रहता है और बायर्स वहां पे बहुत ज्यादा रहते हैं. ओके, टेल मी अबाउट द कमोडिटी. मोनोपोली मार्केट में कमोडिटी कैसा है, एकदम यूनिक कमोडिटी है या वो सबके पास अवेलेबल है ऐसा वाला कमोडिटी? बोलो. यूनिक. यस, वेरी गुड. मोनोपोली का यही एक एडवांटेज है कि वो सिंगल सेलर जो रहेगा उसके पास ही वो कमोडिटी अवेलेबल है, बाकी किसी भी सेलर के पास वो कमोडिटी अवेलेबल नहीं रहेगा. ठीक है, सो देयरफॉर वी आर सेइंग दैट द सेलर इज सेलिंग द यूनिक कमोडिटी. ओके, नाउ यू टेल मी हियर कि सेलर है तो यहाँ पे उसके पास ही वो कमोडिटी अवेलेबल है, तो आपको क्या लगता है वो प्राइस जो डिसाइड करेगा
वो खुद से डिसाइड करेगा या मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा? क्या लगता है आप लोगों को? से मैम Market. वो से खुद से हाँ अपने तरफ से डिसाइड करेगा। वेरी गुड, ठीक है। वो क्या Price करेगा? खुद maker. से। हाँ, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं फिर? प्राइस टेकर और प्राइस मेकर। Price Price maker. maker हम मैम. लोग उसे कहेंगे प्राइस Price maker. मेकर। हाँ, आपको क्या लगता है मोनोपोली मार्केट में जो फर्म रहेगा वो जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट कमाता रहेगा या फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाता रहेगा? Normal. अच्छा, मुझे लगता है कि Normal मैम. मुझे लगता है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा, बिकॉज उसके पास पूरा अथॉरिटी है कि नहीं? यस मैम। हाँ, वो खुद डिसाइड करेगा ना, वो कमोडिटी उसके पास ही अवेलेबल है। Yes मैम. हाँ, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसको कितना परसेंटेज का प्रॉफिट चाहिए वो प्राइस वहां पे डिसाइड करता है। खुद ही वो प्राइस डिसाइड कर रहा है ना, तो ही विल गोइंग टू अर्न द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हियर। ये ध्यान में रखना आपको। परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं, और व्हेन वी से अबाउट द मोनोपोली मार्केट, तो वहां पे वो फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉफिट वो कमाता है। चलो मैं इसके बारे में रीड करके आपको बताती हूँ। सी, a monopoly market is one where there is only one seller of a commodity who controls the supply and also decide the price. However, a rational monopolist who aims at maximizing profit would not control both supply and the price here. He would control only one of them and allow the other to be determined by the market forces. In the case of monopoly, one firm constitutes the whole industry. Thus, the entire demand of the consumer for a product faces the monopolist. Since the demand curve of the consumer for a product slopes downward under monopoly, the firm faces downward sloping demand curve. If the monopolist want to increase sale, he has to lower the price. If he raise the price of his product, he should be prepared to sacrifice some sales also. देखो, उन्होंने यहाँ पे क्या बताया? उन्होंने यहाँ पे कहा कि वो सिंगल सेलर है, उसके पास टोटल कंट्रोल है कि उसको कितना प्राइस चार्ज करना है, कितना सप्लाई करना है। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो रैशनल मोनोपोलिस्ट रहेगा, जो रैशनल सेलर रहता है ना, वो है ना दोनों के दोनों फैक्टर को कंट्रोल नहीं करेगा। जैसे कि मैंने क्या कहा कि वो सप्लाई के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, प्राइस के ऊपर भी कंट्रोल कर सकता है। लेकिन उनका ऐसे कहना है कि जो रैशनल फर्म रहेगा, जिनको अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करवाना है, तो वो आइदर प्राइस के ऊपर कंट्रोल करेगा या फिर सप्लाई के ऊपर कंट्रोल करेगा। अगर वो प्राइस के ऊपर कंट्रोल करता है, मतलब वो प्राइस अगर बढ़ाता है, तो उसको रेडी रहना चाहिए कि समवट ही नीड टू सैक्रिफाइस द सेल ऑफ हिज कमोडिटी। मतलब वो प्राइस अगर ज्यादा रखेगा तो ऑब्वियसली ज्यादा उसका कमोडिटी सेल नहीं होगा। अगर वो प्राइस कम रखता है तो वहां पे क्या होता है, उसको सप्लाई ज्यादा कर सकता है, मतलब वहां पे सेलिंग ज्यादा होगा। तो इसके लिए उसको थोड़ा प्रॉफिट के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, लेकिन उसका सेल ज्यादा होगा। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि आइदर ही कैन कंट्रोल ऑन, इट इज बेटर इफ यू विल कंट्रोल ऑन ओनली वन फैक्टर, नॉट ऑन द बोथ द फैक्टर। मतलब उसे आइदर प्राइस के ऊपर कंट्रोल करे या फिर सप्लाई के ऊपर कंट्रोल करे। देखो यहाँ पे भी अगर हम लोग नेचर ऑफ डिमांड को देखेंगे, अगेन इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड। ये क्यों डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है? बिकॉज वो जो भी कमोडिटी सेल कर रहा है उसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है। लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है मतलब एग्जैक्टली क्या? लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होना मतलब अगर उस कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड थोड़ा कम हो जाएगा, अगर उस कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड बढ़ जाता है। ओके, एंड व्हेन दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द कमोडिटी, so that demand curve will be always downward sloping only. Are you getting me student? ये समझ में आया आपको मोनोपोली Yes, मार्केट का ma'am. नेचर? यस। अभी हम लोग बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में। अच्छा चलो, अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब क्या है कि जैसे कि बायर्स एंड सेलर्स के बारे में, व्हेन वी से अबाउट द परफेक्ट कंपटीशन, तब हम लोग बोलते थे कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर। लेकिन जब बात आती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, सो देयर वी आर सेइंग देयर आर मेनी बायर्स एंड मेनी सेलर। बराबर है या नहीं? आप लोग ऐसे ही लिखते थे 12th स्टैंडर्ड में, ये डिफरेंसेस था वहां Yes, पे, ma'am. isn't Yes, it? ma'am. हाँ, मतलब परफेक्ट के लिए हम लोग लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर लिखेंगे, लेकिन मोनोपोलिस्टिक के लिए हम लोग मेनी बायर्स एंड मेनी सेलर्स करके ऐसा वर्ड लिखते थे। लेकिन यहाँ पे जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ना, यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जैसे कि देखो, ये जो परफेक्ट कंपटीशन था, इन द परफेक्ट कंपटीशन द सेलर यूज्ड टू सेल द होमोजेनियस कमोडिटी।
अंडर मोनोपोली मार्केट द सेलर यूज्ड टू सेल द यूनिक कमोडिटी। लेकिन जब बात मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की आती है तो वो लोग कैसी टाइप ऑफ कमोडिटी सेल करते हैं स्टूडेंट, बताओ मुझे। वो तो ना होमोजेनियस कमोडिटी सेल करते हैं ना ही यूनिक कमोडिटी सेल करते हैं, तो वो कौन सी टाइप ऑफ कमोडिटी सेल करते हैं बताओ, याद आ रहा है? डिफरेंशिएटेड कमोडिटी पता है आप लोगों को? डिफरेंशिएटेड, यस। Yes, ma'am. हाँ, तो मुझे कोई बता पाएगा कि डिफरेंशिएटेड कमोडिटी मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, क्या वहां पे रहेगा, क्या फीचर्स है उसका? आर दे सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, डू यू थिंक सो? मैम उसका अलग प्रोडक्ट रहेगा। अलग रहेगा। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। प्रोडक्ट एक ही रहेगा लेकिन मैम ब्रांड अलग रहेगा। ओके, सी मैं आपको समझाती हूँ। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट मतलब क्या होता है कि जो कमोडिटी अवेलेबल है ना, वो वहां पे मतलब बहुत सारे टाइप की कमोडिटी अवेलेबल है, लेकिन जो कमोडिटी अवेलेबल है वो एक दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट रहेगी। अभी इसके लिए बेस्ट एग्जांपल हम लोग क्या दे सकते हैं? द बेस्ट एग्जांपल वी कैन गिव इट लाइक कोल्ड ड्रिंक्स। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स में हम लोग अगर बात करेंगे, मुझे अगर मतलब आई विल टेक द लेमनेड फ्लेवर वाला एग्जांपल है, ओके। कोल्ड ड्रिंक्स में जैसे कि माउंटेन ड्यू है, स्प्राइट है, लिम्का है, इसके बाद में सेवन अप है, कि जिनका टेस्ट है ना ऑलमोस्ट थोड़ा सेम रहता है, ओके। सो मतलब थोड़ा लेमन फ्लेवर का उनका टेस्ट रहता है। सो दे आर एक्चुअली सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, वो एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट होते हैं। उसको कहा जाता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। देखो, उनके बॉटल जो उनका साइज है, जो उनका बॉटल का शेप है वो अलग है, उनके टेस्ट भले वो लेमनेड फ्लेवर का है बट फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है उसके अंदर, एकदम भी डिट्टो नहीं, एकदम भी सेम ऐसा नहीं है। अगर हम लोग लेमन फ्लेवर की बात करें तो नींबू से, फिर अगेन लिम्का है, सेवन अप है, तो लिम्का का टेस्ट थोड़ा अलग रहेगा, नींबू का टेस्ट थोड़ा अलग रहता है, और सेवन अप का टेस्ट थोड़ा अलग रहेगा। एम आई राइट और नॉट? यस। Yes, लेकिन ma'am. वो अगर तुम Yes, लोगों ma'am. को सेवन अप नहीं मिलेगा तो आप सेवन अप की जगह पे स्प्राइट प्रिफर करोगे क्या? आप ऐसे बोलोगे नहीं मुझे सेवन अप ही चाहिए करके? यस, नहीं ना। अगर सेवन अप नहीं अवेलेबल है किसी भी होटल में तो आप लोग बोलोगे ठीक है चलो स्प्राइट लेके आओ, इजंट इट? तो इसको कहा जाता है डिफरेंशिएटेड कमोडिटी। अभी ये तो मैंने आपको बहुत छोटे इसमें बता दिया एग्जांपल। अगर हम लोग टीवी के बारे में बात करेंगे, टीवी सेल, तो टीवी जिसका प्राइस थोड़ा ज्यादा रहता है मैं उसके बारे में बात करें, ठीक है। सो टीवी का आपको पता है कि क्या यूज रहता है करके, ओके। लेकिन फिर भी टीवी के प्राइजेस में भी डिफरेंसेस रहते हैं, ज्यादा नहीं रहेंगे बट फिर भी डिफरेंसेस रहते हैं। लेकिन कोई एक आध ब्रांड ऐसा रहेगा कि जिसका बहुत ज्यादा कॉस्ट रहेगा एज कंपेयर विद द अदर टीवी। एम आई राइट और नॉट स्टूडेंट? ऐसा होता है। जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है मुझे सबसे ज्यादा कॉस्टली सोनी का टीवी लगता है। सोनी टीवी मतलब वो ब्रांड है, उसका अलग ही स्टैंडर्ड है करके, वो भले ही टीवी है उसके साथ में बहुत सारे सब्स्टिट्यूट कमोडिटी अवेलेबल है, बट फिर भी टीवी सोनी का जो चार्जेस रहेगा वो बहुत ज्यादा रहता है। तो इसको कहा जाता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है स्टूडेंट? द प्रोडक्ट विच आर अवेलेबल दे आर सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, और वो थोड़े स्टैंडर्डाइज रहते हैं। मतलब हर एक कंपनी का अपना अपना स्टैंडर्ड रहेगा, भले वो कमोडिटी सब्स्टिट्यूट है लेकिन हर एक का अपना। जैसे डिटर्जेंट पाउडर वी कैन से, डिटर्जेंट पाउडर में अरे वाह वो तो टाइड यूज कर रही है, अच्छा वो तो निरमा है, मतलब वहां पे स्टैंडर्ड के अलावा अलग अलग होता है। दोनों का भी यूज कपड़ा धोने के लिए ही है, बस स्टिल कि नहीं वो वहां पे सर्फ यूज कर रहे हैं मतलब उसका ज्यादा अच्छा है, इजंट इट? तो वो एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट है लेकिन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। आर यू गेटिंग मी? कि हर एक का अपना अपना एक क्वालिटी, अपना अपना एक स्टैंडर्ड है। तो दिस इज व्हाट हैपनिंग इन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओके। लेकिन उससे पहले मैं एक बार, कल मुझे किसने अटेंडेंस भेजा था तुम लोगों के क्लास में से, ये डिवीजन में से? मैंने भेजा था, किसने? राहुल यादव। हाँ, भेजा था मैम। प्लीज मुझे फिर से एक बार भेजो अटेंडेंस, फिर से मतलब आज का लिया, आज के लिए आज का अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लेके रखो, बिकॉज ऑलरेडी इट शोज लेस देन 8 मिनट करके वो कभी भी लेक्चर खत्म हो सकता है, ओके। सी हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यहाँ पे क्या होता है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होने की वजह से जो डिमांड है ना स्टूडेंट, वो डिमांड थोड़ा ज्यादा इलास्टिक रहता है। ज्यादा इलास्टिक क्यों? मतलब व्हाई इट इज मोर इलास्टिक?
वाई द नेचर ऑफ डिमांड का अगर आप लोग नोट करेंगे, ये मोनोपोली मार्केट का, परफेक्ट कंपटीशन का डिमांड का, लेकिन मोनोपोलिसी कंपटीशन का जो डिमांड का है ना वो थोड़ा सा ऊपर है, मतलब इट्स अ लिटिल फ्लैटर वन हम लोग कह सकते हैं. It shows the more elastic in nature. Why it is more elastic in nature? Because the commodity are substitute to each other. अगर किसी एक commodity का प्राइस कम हो जाता है तो उससे उसके डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाता है. And why this is so? Because under monopolistic competition, the seller is selling the differentiated commodity. Are you getting me, student? ये समझ में आया आपको? Yes or Yes, no? ma'am. हाँ, अभी हम लोग बात करेंगे ओलिगोपोली मार्केट की. ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है स्टूडेंट? देयर आर वेरी फ्यू सेलर, और यहाँ पे भी जो कमोडिटी रहती है ना वो स्टैंडर्डाइज रहती है और डिफरेंशिएटेड रहती है. जैसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेल होता है, सेम यहाँ पे भी रहता है. लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है इन ओलिगोपोली मार्केट? इन ओलिगोपोली मार्केट देयर आर वेरी फ्यू सेलर इन द सेंस मिनिमम 2 सेलर्स रहते हैं और मैक्सिमम 12 सेलर रहते हैं. अगर उससे ज्यादा सेलर है तो वो फिर ओलिगोपोली में नहीं आएगा, वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आ जाएगा. ओके, सो ओलिगोपोली मार्केट का यही फीचर रहता है कि यहाँ पे जो सेलर्स रहेंगे दे आर सेलिंग स्टैंडर्डाइज और द डिफरेंशिएटेड कमोडिटी, एंड देन अगेन उनका जो प्राइस रहता है वो प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है? दैट प्राइस विल बी डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस. अदरवाइज वहां पे जो भी लीडर रहेगा, लीडर मतलब कौन? ओलिगोपोली मार्केट में कौन लीडर रहेगा? तो यहाँ पे लीडर इसको किनको कहा जाता है कि जिस फर्म का मार्केट में रेपुटेशन ज्यादा है उसको वहां पे लीडर कहा जाता है. एक ये हो गया. जो फर्म मार्केट में बहुत पुराना है उसको लीडर हम लोग कह सकते हैं. या फिर जो फर्म बहुत डोमिनेंट है, हर एक के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है, वो अपने आप में एक लीडरशिप ले लेता है, तो वो ऐसे डिसाइड, मैं जो बोलेगा वही प्राइस वहां पे फॉलो करना पड़ता है, एंड द अदर हैव टू फॉलो दोस प्राइसेस आल्सो. ओके, सो दिस इज व्हाट द ओलिगोपोली मार्केट. ओलिगोपोली मार्केट में जो कमोडिटी रहते हैं वो डिफरेंशिएटेड रहते हैं, ऑलरेडी बहुत कम सेलर रहते हैं वहां पे. तो बहुत कम सेलर रहने की वजह से क्या होता है कि देयर आर चांसेस दे मे गोइंग टू मेक एन एग्रीमेंट कि क्या प्राइस पे कमोडिटी सेल होना चाहिए करके, उसके ऊपर वो एग्रीमेंट करके प्राइस फिक्स रख सकते हैं. वहां पे उनका प्राइस में कंपटीशन नहीं होगा, बिकॉज सब लोग ऐसा कमोडिटी सेल करें कि जो एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट है. ओके, सो वो लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग प्राइस के बेस पे कंपटीशन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग प्राइस के बेस पे कंपटीशन करना स्टार्ट किया तो हम लोग बस नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा पाए. हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो हम लोग सब लोग मिलके एक पर्टिकुलर प्राइस को डिसाइड करते हैं और उस प्राइस पे हम लोग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं. वी विल नॉट गोइंग टू अर्न द नॉर्मल प्रॉफिट अगर हम लोग प्राइस के ऊपर वॉर करेंगे. सो वो लोग क्या करते हैं, प्राइस के बेस के ऊपर वॉर नहीं करते हैं, मतलब कुछ कंपटीशन नहीं रहता उनके बीच में. उनका जो भी कंपटीशन रहता है ना, अपना कमोडिटी का क्वालिटी अच्छा करने का है, मतलब स्टैंडर्डाइज कमोडिटी बनानी है, अच्छे से एडवर्टाइजमेंट करो, अच्छा प्रमोशन करो, ये सब के ऊपर उनका कंपटीशन बहुत चलता है. ओके, सो देयरफॉर इन द डायग्राम इफ यू कैन सी, तो यहाँ पे उनका प्राइस जो है वो फिक्स है, इट इज OP0. ओके, सो अगर ये OP0 प्राइस है, आई एम जस्ट गोइंग टू रीड दिस पॉइंट हियर, व्हाट एग्जैक्टली दे हैव गिवन हियर. सी, a firm in an oligopoly market may face demand curve having a king. यहाँ पे जो ब्रेक आपको दिख रहा है ना के करके, देखो ये जो के पॉइंट है, ये जो के आप लोग देख रहे हो, दैट के इज कॉल्ड एज अ किंग. किंग मतलब वहां पे ब्रेक आ गया. ओके, सी व्हाई दैट किंग हैज अराइज, ऐसा किंग क्यों आया उनके इसमें? The king arises on account of uncertainty about the reaction of his rivals to his decision. In case the firm increase the price, others are unlikely to raise the price. The rivals may not raise the price in order to sell more at a lower price. On the other hand, when an oligopoly reduces the price, others will lower the price in order to prevent any reduction in the sale. The demand curve of an oligopoly has a king at K in figure 3.7. The demand curve has two parts, that is DK and D1K. The demand curve above the king DK is more elastic, and the demand curve below the king D1K is less elastic. This is due to the different reaction of a different firms here. The king leads to indeterminateness of the demand for the product of the seller concerned. He thus thinks it is worth to follow the prevailing price and not to make any changes in it.
This is due to the fear that raising of price will lead to fall in demand if others do not raise the price. On the other hand, a lowering of a price by the seller may lead to retaliation from the rivals in order to prevent any fall in sales here. ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे क्या बताया कि जो के पॉइंट आया है, दिस इज एक्चुअली ब्रेक इन द डिमांड को, मतलब जो ऊपर वाला कर्व है जैसे कि डीके है, तो डीके क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट द डिमांड इज मोर इलास्टिक, और डीके1 क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इज लेस इलास्टिक है. ओके, तो ऐसे अभी आप बोलोगे कि मैम लेकिन यहाँ पे P0 प्राइस को उन्होंने फिक्स किया, तो ये सब क्यों हो गया वहां पे? चाहिए, उन्होंने क्या कहा है कि कभी कभार जो लीडर का रोल करता है ना वहां पे, कि किसी एक फर्म को लीडर करके रखते हैं, तो कभी कभार वो लीडर को भी फंसा सकते हैं, ये ओलिगोपोलिस. तो इसके वो क्या फंसा सकते हैं कि समटाइम्स सम ऑफ द फर्म विल से कि मैं क्यों उसका मानूं, मेरा अपना कमोडिटी है, मेरा अपने कमोडिटी का स्टैंडर्ड है, मैं अपने हिसाब से उसको फॉलो करूंगा. तो वो क्या ट्राई करेगा, वो अपने कमोडिटी का प्राइस बढ़ा देगा, मतलब OP0 से वो प्राइस को उससे भी ज्यादा बढ़ाएगा. तो उससे क्या होगा, अगर उसने प्राइस बढ़ा दिया तो उसको क्या लगेगा, मैंने प्राइस बढ़ा दिया तो मैं तो अभी सुपर ओवर प्रॉफिट कमाने वाला हूँ, तो मेरा देख के बाकी फर्म भी प्राइस बढ़ा के रखेंगे, लेकिन बाकी फर्म ऐसा नहीं करते. तो उसका जो प्रेडिक्शन था वो रॉन्ग निकला. बाकी फर्म ने प्राइस बढ़ाया नहीं, इसके लिए क्या हुआ, उसने अकेले ने प्राइस बढ़ाया, तो उसका सेलिंग जो था वो कम हो गया, उसके कमोडिटी के लिए डिमांड कम हो गया, लेकिन बाकी कमोडिटी के लिए डिमांड वहां पे बढ़ गया. तो अभी उसको एक आइडिया आ गया कि प्राइस बढ़ा के कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि बाकी जो मैं सोच रहा हूँ कि बाकी फर्म मेरे जैसे काम करेंगे, वो मेरे जैसे काम नहीं कर रहे, जो मैं बिहेव कर रहा वैसा वो लोग नहीं कर रहे. तो इसके लिए वो चुपचाप से अपने फिर से OP0 प्राइस लेवल पे आ जाएगा. सपोज इसमें से भी अगर कोई फर्म ये डिसाइड करेगा कि मैं अभी OP0 से भी प्राइस और कम कर दूंगा, ठीक है, तो किसी एक फर्म ने प्राइस OP0 किया, तो दूसरा फर्म बोलेगा अच्छा उसने प्राइस कम किया, अभी उसके पास सेल ज्यादा होगा ना, चलो मैं और भी कम कर रहा हूँ, तो दूसरा वाला प्राइस और भी कम करेगा. तो दूसरे वाले का देख के जो पहले वाले ने प्राइस कम किया वो टेंशन में आ जाएगा, अरे बाप रे इससे तो प्राइस कम कर दिया, तो मुझे उससे भी ज्यादा अगर प्राइस कम करना पड़ेगा, देन अगेन ही विल गोइंग टू रिड्यूस द प्राइस. तो अल्टीमेटली ऐसा करते करते दोनों भी लॉस में चले जाएंगे. ओके, इसके लिए दे विल गोइंग टू स्टिक विद द प्राइस OP0, और वो लोग कंपटीशन करेंगे, सो दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टाइजमेंट या फिर अपने कमोडिटी की क्वालिटी के लिए. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट दिस पॉइंट? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. Yes, ऑल अबाउट द नेचर ऑफ डिमांड का. अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपना जो 4th चैप्टर है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे. ओके स्टूडेंट, shall I end the lecture now? ma'am. Yes, ma'am. Okay student, bye. Thank you, ma'am.